Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome once again to my YouTube channel. Today I'll be sharing you all the steps that how to apply online for DMC registration, okay, in Delhi Medical Council. How will you apply for your permanent registration, okay? So let's get started. So first you need to go to Google Chrome and you need to type DMC, then such type of interface will come, the official website link will come, and then you need to open it. I have already opened a few of the interfaces because it was taking a lot of time. ठीक है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो था, so कुछ मैंने open कर रखा है. So as you can see, when you will write DMC, this official link of the website will be coming on your screen, and then you will have to click on this. Then such kind of interface will come. Okay, the home page of the official website of DMC. Then you need to click on the login. Okay, and when you will click on login, then a few details they'll ask you. Okay, now I think it is working. So such kind of login page will come. Here you need to write the email address, the login ID, and the password, and the captcha already which is showing here. And yeah, one more thing, this user ID or email ID and password which you created while logging in when you were signing in for the temporary registration. Okay, when you applied temporary registration, so already you are having, okay, the login ID and password. Yeah, one more thing can happen कि sometimes क्या होता है कि वो आपका login नहीं होगा, then you can call to the DMC. They will sort it out. Just like with me also the same problem was there. So I called and then they solved it on phone only. So either you need to go to their office or else you can call them. Mostly they'll solve it. So वो registration जो आपने उस टाइम टेम्पररी क्रिएट किया था, तो तब जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यूज हुआ था, the same will be used. Okay, so email ID, password, and then when you will log in, I created one extra login ID so that I can show you. This is not my official one. Okay, so put all the details, then such kind of interface will come. Okay, now the important thing starts. On the left hand side, see provisional registration, two options are there: provisional registration Delhi and provisional registration for foreign medical graduates. So already you have done, so this is not our part. Now fresh registration, that is your permanent registration. In permanent registration also three categories are there. You can see permanent registration Indian medical graduates only, so this is not for us. Okay, now the next one is permanent registration Delhi state, means those who belong from Delhi. Now the third category is, okay, total four categories are there. Now the third category is permanent registration outside Delhi state. Okay, but Indian medical graduates. So this is not for us as well. Now the next one is permanent registration for foreign medical graduates outside India. Okay, so this is our link. Now you need to click on this. I hope it opens soon. Yeah. Okay. So these are the stuffs you can see. Foreign outside permanent registration certificate. Okay. तो these are the instructions. Basically these are the documents. Okay, क्योंकि क्या है कि form start होने के बाद it will be difficult to collect all the documents. Okay, so already instruction and a collection of documents they are showing you, so that आप पहले भी ready कर लो. Only then you click on proceed button. Okay, and then further you can start. It will be easy for you. You can get ready with all the documents, make one file और desktop पे आप रखो या फिर phone में एक जगह रखो और उसको फिर आप upload कर सकते हो. So these are the documents. This is 10th marksheet, 10th मार्कशीट फ्रॉम स्कूल, सॉरी 11th मार्कशीट फ्रॉम स्कूल और पासिंग सर्टिफिकेट, और मतलब 11th का कोई ऑफिशियली हर किसी को मिला नहीं. ठीक है, सो 11th का अगर आपके पास जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वो भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप अपलोड कर सकते हो. ठीक है, उसको आप अपलोड, अगर आपके पास नहीं है देन गो टू योर स्कूल. ओके, एंड टेक फ्रॉम देयर. कोई भी प्रोविजनल ही मांगो उनसे, उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा अगर आपने नहीं लिया है तो, एंड इफ इट इज विद यू देन नो प्रॉब्लम, यू कैन अपलोड. 12th मार्कशीट फ्रॉम बोर्ड. ओके, एंड 12th का जो मार्कशीट है उसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है. देन अ सॉर्ट ऑफ स्टेट विल कम, और अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड्स है ना, मतलब सीबीएसई बोर्ड ही है बट अलग अलग स्टेट के, तो किसको पेमेंट करना है वेरिफिकेशन के लिए और किसको नहीं करना है, दैट विल कम. यू कैन सी दैट इंस्ट्रक्शन. ओके, सो यू विल क्लिक इट ऑन दिस आल्सो. सो देखो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा किसको पे करना है किसको नहीं पे करना है. इसमें कितने 3 पेजेस हैं आई थिंक. ठीक है, तो हर स्टेट का किसको कितना क्या पेमेंट करना है या नहीं करना है, दिस विल हैव टू गो थ्रू थ्रू दिस. ओके, जैसे कि देखो जम्मू एंड कश्मीर के लिए 710 है, तो किसके लिए लगेगा, और वो सारे अकाउंट नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, एवरीथिंग इज देयर. ओके, तो आपको किसको पे करना है, मोस्टली जो भी लेटेस्ट वाले जो भी हैं उनको नहीं करना होगा, बाकी आप देख लेना इसमें. जैसे कि मुझे तो नहीं करना पड़ा वेरिफिकेशन के लिए. ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि पुराने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाइड नहीं थे. आजकल के जो लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो तो सब ऑलरेडी वेरीफाइड है,
तो उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट पुराने जो है वेरीफाइड नहीं है, इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, सब कुछ ऑनलाइन वगैरह, सो दैट इज नॉट वेरीफाइड, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग चार्जेस। ओके, तो उसको वेरीफाई करवाना है। एंड देन प्रोविजनल स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन जो आपने प्रोविजनली अप्लाई किया है वो चाहिए आपको। ठीक है, in case not registered with, this is the important point, in case not registered with any state medical council, then upload a blank page जिसमें कि ये लिखा हुआ होगा not registered, means you need to take out a print जिसमें बीच में सेंटर में बड़े बड़े मोटे अक्षर में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ हो not registered, और वो पेज आप फिर अपलोड करें उसकी फोटो, जैसे आप 10th की फोटो निकाल करके करोगे स्कैन कॉपी, 11th का, 12th की, उसके फिर इसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो ठीक, और नहीं है तो इसका एक पेज निकाल दिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको वो करना है। ये है डिग्री डिप्लोमा जो आपने जहाँ से भी लिया है, जिस भी कंट्री से लिया है, द सेम इन लैंग्वेज। अगर हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये लिखी हुई है कि अगर वो इंग्लिश, रशियन, चाइनीज किसी भी लैंग्वेज में है अदर देन इंग्लिश, अगर वो अदर देन इंग्लिश है तो उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इफ द सेम इन एज लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इनको समझ में आएगी, ऑब्वियसली अदर लैंग्वेजेस में है तो नहीं समझ में आएगी, तो उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो आपको अपलोड करना है, इट्स बेटर टू अपलोड बोथ। ठीक है, और अगर पीडीएफ बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, तो अपलोड द इंग्लिश वर्जन में। ओके, कई जगह पे ऐसे भी आएंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में। ठीक है, मैं आपको फर्दर बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे मैं इंग्लिश वाला भी कर दूँ, चाइनीज वाला भी कर दूँ, ये वाला भी कर दूँ, सारे लैंग्वेजेस कर देंगे तो पीडीएफ का साइज बड़ा हो जाएगा। पीडीएफ के साइज के लिए भी आगे आपको वो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, तो अगर वो बड़ा हो रहा है तो यू कैन गो विद द इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, और बाद में आप वेरिफिकेशन भी तो होगा, इसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो, नो वरीज। ये तो बस एक सॉफ्ट कॉपी है जो आप सारी चीज़ें डीएमसी को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिग्री। उसके बाद फिर जितने भी पेजेस हैं सब उसमें डाल दो। ठीक है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट इन पोजेशन फर्स्ट पेज, ठीक है, एंड लास्ट पेज, ये दोनों पेजेस स्कैन करके एक ही में एक पीडीएफ बना के और आपको अपलोड करना है। देन इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द हॉस्पिटल, अब इंटर्नशिप का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स बना लेना है और वो अपलोड करना है। फर्दर इसके लिए ऑप्शंस भी आएंगे प्लस, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आगे, फिलहाल आप चलो पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपको एनएमसी से मिला है वो। उसके बाद फिर कई जगह पे क्या है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका वो भी बन जाएगा जो आपका नीट यूजी का मार्कशीट है, तो वो आप देख लेना, आपको पता होगा वो किसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आप गए हो बाहर पढ़ाई के लिए तो इट रहेगा, तो जिसके लिए एक्चुअल में एनएमसी ने जो इशू किया है वो वाला एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और कुछ लोगों के लिए पासिंग वाला, तो वो आप देख लेना। एंड देन स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आया है तो उसका आपका स्क्रीनिंग रिकॉर्ड, ये स्कोर कार्ड मिला होगा जो आप एनएमसी से जा करके स्लॉट बुक करके आपने लिया होगा, तो उसको स्कैन करके डालना है। And then the affidavit to be submitted on the non-judicial stamp paper of ₹10, which should be duly notarized by notary public for performer। क्लिक है, परफॉर्मा इसमें दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है। ओके, हाँ, तो ये आपका एफिडेविट है, ये सारे ब्लैंक जो चीज़ें हैं वो आपको भर के, और यहाँ पे नोटरी वगैरह का वो पूरा वो बनता है, वो नोटरी वाले के पास आप जाओगे तो वो एवरीथिंग दे विल गेट इट फ्रॉम देयर। ओके, तो ये आपका एफिडेविट हो गया जो आपको देना है। और उसके बाद फिर इसके अलावा इफ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इफ यू आर हैविंग व्हिच प्रूव्स दैट यू आर अ डॉक्टर नाउ, अगर कुछ और अलग से आपके पास है तो यू कैन गिव इट नाउ, देन यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड। ओके, नाउ दिस काइंड ऑफ इंटरफेस विल कम। ओके, तो आपने जैसे कि जो भरा होगा जो आपका, तो वो आपको कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी आ जाएगी, जैसे मेरा नाम देखो आ रहा है ऑलरेडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी, जैसे फादर्स नेम, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका अलग से अगर कोई अगर फ़ोन नंबर है तो वो डाल सकते हो, आधार नंबर, पैन नंबर, ओके, नेशनैलिटी। नाउ एड्रेस में आपके दो एड्रेसेस हैं, एक तो आपका मेलिंग एड्रेस और एक आपका परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो यू कैन टिक ऑन दिस। नाउ हाँ, ऐड डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप। ओके, तो हियर आर द, जैसे कि इंटर्नशिप के लिए क्या है, कई बार क्या होता है पीएसएम की अलग पोस्टिंग लगती है, गेट अनदर पोस्टिंग फॉर पीएसएम, और यू गेट सेपरेट पोस्टिंग फॉर रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल्स, तो दो तीन जगहों पे लगती है तो अलग अलग सर्टिफिकेट्स यू गेट। ओके, तो इसलिए ऐड रो का ऑप्शन है, आप ऐड करोगे तो ऐसा ही सेम एक और ऑप्शन बन जाएगा, और उसमें आपको जब से जब तक वो चीज़ चली है वो आपको भरना है। ठीक है, कई लोगों का 2 साल भी है तो उसमें भी ये चीज़ आएगी। अच्छा, वन मोर थिंग, मोर प्रॉब्लम यू विल गेट हियर, कि आपको डेट के लिए इशू आ सकता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि सेपरेट सेपरेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है, एक ही में पीडीएफ बना के वो डेट आप मेंशन कर दो बस, और उतना ही सफिशिएंट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि पीएसएम का आप अलग अपलोड करो और उस हॉस्पिटल का आप अलग अपलोड करो, एक में भी आप डाल सकते हो। और योर विश आप सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 साल का एक साथ ही दे दो, और फिर सेकेंड ईयर का अगर आपका है तो अलग से। एंड नाउ डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ये एमबीबीएस वाली चीज़ है। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और
फिर आ जाता है डिटेल्स ऑफ प्रोविजनल। अगर आपके पास प्रोविजनल है तो वो आपको डिटेल्स अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेडिकल काउंसिल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ना आपका, वो यहाँ पे आएगा। देखो, अगर आप किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो तो ये नॉट रजिस्टर्ड विथ अदर स्टेट मेडिकल काउंसिल में किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो बस फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। ये आप किसके लिए डाल रहे हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। आपका तो वैसे है ही नहीं, ये डालने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी आपको छोड़ देना फिर प्लान। उसके बाद फिर एड्रेस ऑफ किसी में जहाँ आपने प्रैक्टिस की है अलग से अगर कुछ है तो आप कर सकते हो, वरना नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है। फिल दिस फील्ड इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ अगर आप आउटसाइड हो तो आपके पास ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, तो ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की सारी चीज़ें डिटेल डालें। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी नंबर में क्या डालें। देखो, एलिजिबिलिटी नंबर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो एक बार आप डाल के देख लो पूरा का पूरा वो एज इट इज। इफ इट इज स्पीकिंग सबमिट में कोई इशू नहीं आ रहा है देन ओके। अगर सबमिट में इशू आ रहा है तो बीच में एक शॉर्ट में नंबर होगा EC डैश करके समथिंग समथिंग, वो उतना ही डाल के फिर ओके कर। क्योंकि देखो, ये जो है सिर्फ नॉर्मली सॉफ्ट कॉपी है जो हम TMC को दे रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल सारे प्रूफ है, तो वहाँ पे कुछ अगर कम ज़्यादा है तो आप उनको दिखा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि वो सबमिट करने में उसमें बहुत सारे डैश हैं, कॉमा है, तो सबमिट करने में दिक्कत आती है। तो आप डाल के एक बार एलिजिबिलिटी नंबर पूरा देख लो, इफ इट इज स्पीकिंग इट्स ओके। मेरे टाइम पे प्रॉब्लम कर रहा था इसमें MB नंबर में, तो फिर मैंने फ़ोन किया था DMC को, तो उन्होंने कहा आप छोटा जो वो है वो डालो। MB नंबर में इशू कर रहा था, इसमें तो इशू नहीं आया था, तो इसमें मैंने पूरा ही डाल दिया था। और फिर ये एलिजिबिलिटी की डेट, डेट कहाँ पे होगी, जो सर्टिफिकेट है ये भी, इसके लिए भी क्वेरी आई थी मेरे पास। ठीक, तो ये जो डेट है वो आपको, जो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है उसके नीचे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में साइन है, सिग्नेचर है, ठीक है, अथॉरिटी का, और उसी पे वहीं पे आपके डेट्स भी हैं, ठीक है, वो डेट ही आएगा इसमें। उसके बाद फिर है आपका MB नंबर, ठीक है, ये आपके स्कोर कार्ड पे होगा। MB नंबर डालो, अगर पूरा डल रहा है तो ठीक है, नहीं डल रहा है तो उसमें एक स्मॉल पार्ट आप डालो, बाद में ये अपडेट कर दूंगा। अगर किसी को डाउट है तो आप डाल के एक बार देखो, अगर क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको अपडेट कर दूँ वो एग्जैक्टली क्या है। और NB डेट, उसमें जो मेंशन है ऊपर डेट राइट हैंड साइड में कॉर्नर में सर्टिफिकेट में, वो डेट। अब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या क्या है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, इसका आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड करोगे। वैलिड सिग्नेचर्स की फोटो कॉपी, 10th मार्कशीट, 11th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, सबकी स्कैन कॉपी बढ़िया वाली करना। फोटो खींच के अगर आप करोगे तो कई बार वहाँ पे वो रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो। उसके बाद प्रोविजनल, अगर आप रजिस्टर्ड हो, नहीं रजिस्टर्ड हो तो वही नॉट रजिस्टर्ड वाला पेज आप अपलोड करोगे। डिग्री डिप्लोमा वो जो आपका MBBS वाला है पूरा इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेटेड वाला करना है आपको। अगर पूरा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात। और ये सारे जो है फॉर्मेट आपके होंगे PDF में, ठीक है। और अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हो तो JPG, ठीक है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट वही आपका फर्स्ट और सेकंड पेज एक में ही होगा, और गेस्टेड ऑफिसर से आप साइन करवा लेना, ठीक है। गेस्टेड ऑफिसर आपको पता है क्या होता है, उस पर साइन और स्टैम्प होनी चाहिए, और वो अटेस्ट करवा के फिर अपलोड करना है। यहाँ पे एक तिगड़म आ गया, पहले इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई बट यहाँ पे ये बता रहे हैं। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि आपका इशू किया गया है, वो दोनों पेज अगर आपके अलग अलग सेपरेट हैं तो एक ही PDF बना लो, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन, हाँ यही मैं कह रहा था, ठीक है। वहाँ पे तो इन्होंने रो दे दिया है पहले, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ही ऑप्शन दिया है, तो जितने भी सर्टिफिकेट आपके एक PDF बना के और इसमें अपलोड करो। और फिर है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वो अपलोड करें आप। उसके बाद फिर स्क्रीनिंग टेस्ट कॉपी, ठीक है, वही जो स्कोर कार्ड है आपको। एंड देन यू आर रेडी। आप यहाँ पे डिक्लेरेशन ओके करें और उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे पेमेंट के लिए, और उसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको स्लॉट बुकिंग करनी होगी। आपने ये प्रोविजनल के टाइम पे भी किया होगा, ठीक है, ज़रूरत पड़ी होगी। और यही सेम चीज़ आपको भी परमानेंट के लिए करना है। कुछ 8 या 9 हज़ार रुपये हमारे टाइम पे लगे थे, वही कुछ 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये के आसपास लेंगे, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा किया हो तो। और बाकी आपको स्लॉट लेना है, बुक करना है। स्लॉट बुकिंग के लिए भी एक कंफर्मेशन पेज आएगा आपके एंड में, दैट यू विल गेट, और उस टाइम डेट के हिसाब से आपको जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, उनको आपको फोटो कॉपी के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे, DMC के पास फोटो कॉपी वाला नहीं, मुझे लगाने पड़े थे। सारे डॉक्यूमेंट के प्रॉपर फोटो कॉपी जीरोक्स वगैरह ले लेना, स्कैन कॉपी की, ठीक है। ऐसे ही फोटो खींचे हुए वाले नहीं, अच्छे वाले ले लेना। और उसके बाद सारे आपके पास होने चाहिए, ताकि वो जो भी मांगे आपसे वो आप दे सको, ठीक है। सबकी फोटो कॉपी एक एक दो दो एक्स्ट्रा करवा के ले जाना, ताकि वहाँ आपको भागना ना पड़े, ठीक है। और दैट्स इट, इतनी चीज़ें हैं। और इन केस आपको स्टिल कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई क्लैरिफाई इट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर नाउ।